Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your mentor Shreya here again with you. Before starting today's topic, I want you to thank yourself for making this step, taking this wonderful step ahead to change and learn and grow yourself. I know you are going to make it through my video. So let's begin our concept. So the concept or the topic for today is concept of law. Let's begin with the introduction. So when we talk about law, what is law? और इस शब्द से हमें क्या समझ आ रहा है कानून क्या है सो लेट्स गेट डीप इनटू द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सो लॉ एक कमांड है क्या है इट इज़ अ कमांड विच इज़ इशूड बाय द स्टेट और इसके पीछे क्या होती है फोर्स होती है एक ताकत होती है लॉ इज अ कैरेक्टर ऑफ अ सिचुएशन एक कैरेक्टर है सिचुएशन का जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल यूनिफॉर्मली बिहेव करता है व्हेन वी आर टॉक अबाउट यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा बिहेव करता है अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन obviously it is a behavior which is uniform and it is under some specific condition indicating regularities of behavior अब इसमें क्या कह रहा है बहुत सिंपल वर्ड्स में कि लॉ इज अ कमांड जो कि स्टेट क्या करता है इशू करता है एंड इट हैज़ अ पावर behind it or we can say it is a force behind it. Law is a character of a situation where individual or an object have to behave uniformly. That's it. Let's move. I hope this is clear for you. So when we talk about the definition, if it is asked in your examination, you definitely have to give it. And the definition is given by Salman और ये बहुत ही amazing है and it is the simplest definition which I have found. Law is a collection of rules. Law क्या है? Collection है rules के which the state recognizes and applies in the administration of justice. Please learn this definition because you have to make your answer writing strong and you have to learn this definition. So, next thing which we are going to study and making this clear through this that there is a difference between descriptive and prescriptive law. So, descriptive law को scientific law भी कहा जाता है and prescriptive law को stipulative law भी कहा जाता है. Sometimes this question is asked in such a way जहाँ पे दोनों के names exchange कर दिए जाते हैं साइंटिफिक लॉ याद रह जाता है प्रिस्क्रिप्टिव याद रह जाता है बट वी डोंट रिमेंबर द सेकेंड नेम सो लर्न बोथ द नेम्स सो इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव लॉ a scientific law it means it exists and operates universe को जो ऑपरेट करने वाले लॉज होते हैं we can say scientific laws these included these are included in scientific law descriptive law ये जो है यूनिवर्स में ऑपरेट होता है और ये हमारी विल पे कंट्रोल नहीं होता है ठीक है We can discover it, but we cannot change it or escape from it. It is a scientific law which can be challenged. We can challenge it, but हम इसे चैलेंज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कोई न्यू लॉ हो न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी हो तभी हम इसे या तो चैलेंज कर सकते हैं या रीडिफाइन कर सकते हैं विद अ प्रूफ बिकॉज इफ वी वांट टू से दैट दिस थ्योरी और दिस लॉ दिस साइंटिफिक लॉ इज रॉन्ग तो यू नीड अ प्रूफ. So this is descriptive law. But when we talk about prescriptive law, it is man-made laws. We can simply say when we talk about prescriptive law, ये man-made होते हैं, which are adopted by human society for the regularity, okay, regularity of what? Behavior. लोगों का behavior एक जैसा हो सके, उसके लिए इन्हें अपनाया जाता है. These laws determines what individuals should do or should not. Please understand this line very carefully that ये डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इसी के ऊपर डिपेंड करती है एंड ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ सच रूल्स so next thing which we are talking about the essentials of laws so what are essentials of laws let's get to know about it sorry wait a sec so essentials of laws or law sorry means basic feature or character okay basic feature or character that makes a rule a law बहुत ही बेसिक फीचर है उसके बहुत बेसिक अंग है बोल लो एक तरह से उसके कैरेक्टर हैं जो किसी रूल को
कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं. सो लॉ इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, शुड बी फ्रेम्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ होल सोसाइटी. पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही बनाए जाते हैं. हेल्प्स इन फॉर्म विलिंग सोसाइटी, वी कैन से वेल डिफाइंड सोसाइटी लिखना था. आई होप मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एरर कर दिया है. स्टेट हैज़ पावर टू पनिश दोज इंडिविजुअल हु डिसोबे द लॉ. स्टेट के पास पावर है कि उन लोगों को पनिश करे जो डिसोबे करते हैं लॉ को. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ. दैट मीन्स इफ़ यू डोंट नो अबाउट एनी काइंड ऑफ लॉ, इफ़ यू डोंट नो कि ये कोई जो कानून है, हमने पता नहीं है इसके बारे में और हमने उसे ब्रेक कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. यू विल बी पनिशेबल. एवरीवन शुड हैव नॉलेज ऑफ लॉ. लॉ शुड नॉट बी ओबेड इन फियर ऑफ पनिशमेंट बट फॉर वेलफेयर. लॉ को डर के मारे नहीं मानना है, बल्कि इसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए मानना है. स्टेट हैज़ पावर टू पनिश दोज इंडिविजुअल हु डिसोबे. नेक्स्ट, लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप्स of laws. So when we talk about the types of, first one is national law. अब नेशनल लॉ जो लग रहा होगा आपको थोड़ा नाम से पता, नेशन, कंट्री, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, उसी से रिलेटेड है. नेशनल लॉ इज रिलेटेड टू एनी टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, और in a political science term we will say state. It regulates the nation or national life. Its violation means punishment. It is enforced. अब इसे कौन लागू करता है? लॉ, कोर्ट्स, कानून इसे बनाते हैं नेशनल लॉ को, और ये किसी देश के लिए बनाया जाता है. नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल मीन्स इंटरकनेक्शन समवेयर. इंटरनेशनल लॉ इज दैट गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट नेशन. ये दो देशों के बीच बोलो, दो स्टेट्स के बीच बोलो, ठीक है. क्या करता है? गवर्न करता है रिलेशन को, कंट्रोल करता है. इट लेज डाउन, आई हैव राइट इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, डाउन के रूल्स अकॉर्डिंग टू विच वन स्टेट हैज़ टू बिहेव विद अदर. इसमें क्या होता है कि एक स्टेट के साथ दूसरा देश कैसे बिहेव करेगा वो इंटरनेशनल लॉ से पता चलता है, और ये म्यूचुअल कॉपरेशन और फ्रेंडशिप के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर दो देशों के बीच म्यूचुअल और कॉपरेशन नहीं होगी और साथ में फ्रेंडशिप नहीं होगी, सो वी कांट follow or obey these rules. Let's study next one. And before than that, I want to tell you about जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल मोरालिटी कहा है. जॉन ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल मोरालिटी का नाम दिया है. सो लेट्स मूव फर्दर. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ब्रांच है लॉ की जो ये एक्सप्लेन करती है और इंटरप्रेट करती है कि जो किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा. I will repeat it again for you. Constitutional law is a branch of law that explains, that interprets and protects the constitution of a country. Determines the relationship between the government and the citizens. किसी देश की सरकार और उसके नागरिकों के बीच के relations को determine करता है. It can be unwritten, written, if it tells us about how the different organ of government will function. कानून जो ये वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये डिफाइन करता है कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके काम क्या है, वो क्या काम करेंगे, और उनके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनरी लॉ. सो ऑर्डिनरी लॉ, ये क्या लग रहा है आपको नाम से? ऑर्डिनरी वर्ड का मतलब ही, मतलब हम बोलते हैं बहुत ही ऑर्डिनरी है, बहुत ही नॉर्मल है. मीन्स द नॉर्मल लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर बनाती है इसे, और क्यों बनाती है? ताकि हम डील कर सके डे टू डे मैटर ऑफ सोसाइटी से. To deal with day-to-day matter of society. It is formulated by legislature, traditions, usage and customs. Customs और traditions के बारे में हम आगे deeply पढ़ेंगे. So no, I'm not going to tell you about this very deeply, but ये सिर्फ legislature ही नहीं बनाती हैं. जो हमारे traditions होते हैं, हमारे customs होते हैं, हमारे religion होते हैं, उसमें कुछ religion नहीं, sorry, usage होते हैं, उसके according बनते हैं. Let's talk about public law. What is public law? रेगुलेट्स करता है ये रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट. ये पूरी पब्लिक को अफेक्ट करते हैं
और इसमें उस क्राइम को पनिशेबल माना जाता है, सजा मानी जाती है उसे, जो पूरी पब्लिक को एंटायरली क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर। प्राइवेट लॉ क्या है? प्राइवेट से ही कुछ लग रहा होगा। इट इज रिलेटेड विद सम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और क्लास और अ क्लास ऑफ सोसाइटी, और वी कैन से, ठीक है। प्राइवेट लॉ किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर क्लास की बात करेगा, और इसमें क्या होगा, जो रिलेशन है वो वन इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ डिफाइन किया जाता है। सिविल लॉज जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, यूपीएससी क्लियर करना है, कुछ आ रहा है होगा समझ, तो उससे रिलेटेड है। इट डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सिटीजन्स का एक दूसरे के बीच कैसा रिलेशन होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिफाइन करता है। ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे? आर्बिट्री पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। आर्बिट्री पावर्स मतलब कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे जो उनको मिली है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जर्नल लॉ, ऑब्वियसली इट इज somewhat similar to the law which we have studied before, और किससे रिलेटेड है वो जरा कमेंट में बताएं। अब जर्नल लॉ है, ये लेजिस्लेचर ही बनाता है, बट ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशंस को वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, रन करने के लिए बनाया जाता है। और जो कस्टम्स है और रिचुअल्स है वो भी जर्नल लॉ बनाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ लॉ। अब वेरियस सोर्सेज है जिससे लॉ बना है। सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है दैट इज कस्टम। कस्टम इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ लॉ। इसे क्या बोलते थे पहले? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और अगर इसका वायलेशन करोगे सो इट मीन्स यू आर पनिशेबल। और उस समय जो लोगों की सोशल लाइफ थी, व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, इट वाज कंट्रोल्ड बाय दीज कस्टम्स। और जब ये कब की बात कर रहे हैं, जब इमरजेंसी वगैरह कुछ भी लागू नहीं होती थी। पर एक बात ध्यान में रखनी है, हर कस्टम लॉ नहीं होगा, और जो ज़्यादातर जो इंग्लैंड है वहाँ पे जो लॉज बने हैं दैट आर बेस्ड ऑन कस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजन। सो वी टॉक अबाउट रिलीजन, हमारे धर्मों में ज़्यादातर क्या बातें की जाती हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज। और जो कस्टम है और रिलीजन है, दे आर इंटरवीन्ड, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड डिटरमाइंस ओनली द वो। इसमें क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है मोड ऑफ वर्शिप को, कि आप किस माध्यम से, किस तरीके से वर्शिप कर रहे हो। अ गुड डील ऑफ कस्टम रेगुलेट्स सोशल बिहेवियर। अब ये क्या कह रहा है, इसे ध्यान से समझो, कि जो गुड डील है, अगर अच्छे कस्टम्स हैं, वो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे सोशल लाइफ को, लोगों की। और डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट पर्सनल लॉज होते हैं और बिलीव्स होते हैं, जो कि एक धर्म से दूसरे धर्म में देखने को नहीं मिल सकते कभी कभार। लेट्स टॉक अबाउट साइंटिफिक कमेंट्रीज। अब जो साइंटिफिक कमेंट्री है वो क्या होती है? अब हम कमेंट्रीज पास करते होंगे, आपने क्रिकेट स्टेडियम में भी देखा होगा, वैसी साइंटिफिक कमेंट्रीज होती हैं, और ये बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, इन्हें हल्के में मत लिए। साइंटिफिक कमेंट्रीज एक्चुअली में बहुत प्रोमिनेंट, बहुत फेमस जो जूरिस्ट होते हैं, जो पब्लिसिस्ट होते हैं, वो देते हैं, ठीक है। और उन्होंने दी भी है, उन्होंने इतने अच्छे से इंटरप्रिटेशन की है ना लॉ की, या लॉ को, कि इनकी जो ओपिनियन है वो इतने ऑथेंटिक है कि उनको लॉ खुद भी मानता है। और मतलब लॉ नहीं मानता है, बट दे आर सो ऑथेंटिक, इनकी वैल्यू लॉ के बराबर ही मानी गई है। दे आर सो ऑथेंटिक एज लॉ इटसेल्फ। और जो लॉ कोर्ट्स हैं उनमें भी इनकी कमेंट्रीज का ऑफनली, मतलब बार बार यूज हुआ है। लेट्स मूव फॉर लेट्स टॉक अबाउट इक्विटी। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, इक्विटी क्या है इसको जानना जरूरी है। वैसे इक्विटी का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? हिस्सेदारी। पर ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि डिराइव किया गया था नेचुरल जस्टिस से। और ये क्या हेल्प करता है? विदाउट इक्विटी, ठीक है, विदाउट इक्विटी वी कैन नॉट हैव लॉ। हिस्सेदारी, जब लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी किसी चीज़ में, अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंपल वे में वो करूँ, तो
Why will people take interest in law? अब गिल क्राइस्ट ने यहाँ पे बड़ी अच्छी अपनी डेफिनेशन दी है दैट इक्विटी नॉट ओनली सप्लीमेंट्स लॉ, ठीक है, ना ही केवल बस ये लॉ को सप्लीमेंट करता है बल्कि उसे फ्लेक्सिबल भी बनाता है. इफ वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज विच आर forming law, so why would not be we be interested? Let's move further. अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट टॉपिक है. आई हैव फॉरगॉट टू गिव द हेडिंग टू दिस टॉपिक, बट इट इज फेयर ऑफ लॉ, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स ओनली टू थिंग्स, लॉ एंड मोरालिटी, लॉ एंड लिबर्टी. सो हमारी जो मोरालिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोरालिटी क्या है, दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. ओके, क्या होता है, जो लॉ और मोरालिटी है वो डिफरेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. इफ समथिंग इज, जो मोरालिटी है, लॉ समवेयर मोरालिटी के प्रिंसिपल्स को मानता है, बट अगर कोई चीज मॉरली रॉन्ग है, इफ समथिंग इज मॉरली रॉन्ग, ठीक है, दैट डजंट मीन्स कि वो लीगली भी रॉन्ग होगा. ओके, अब जैसे कि बोल लो बकरी काटना, बकरी काटना क्या बोलते हैं, बलि चढ़ाना इज अ गुड थिंग देवता को प्रसन्न करने के लिए. ओके, ये समवेयर रिलीजियसली भी सही माना जा रहा है, बट इट इज लीगली रॉन्ग. इट फोर्सेस ऑन, इट फोकसेस ऑन सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के ऊपर इसका ध्यान होता है. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, एंड इस पे बहुत ध्यान दें बिकॉज इट इज़ अ सिंपल टॉपिक. व्हेन वी टॉक अबाउट लिबर्टी, फ्रीडम, हम क्या कहते हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए. वन इंडिविजुअल शुड नॉट हार्म द लिबर्टी ऑफ अदर इंडिविजुअल. आपकी पास आपकी स्वतंत्रता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाएं, किसी और की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाएं. दिस रिक्वायर लॉ टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी. अब जो लॉ है वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, ठीक है, किस पे लगाता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर, हमारे ऊपर, ताकि हम किसी और की लिबर्टी को खतरे में ना डालें. और इसके कुछ पर्टिकुलर स्फेयर भी हैं, इसमें मैंने थोड़े मेंशन करे हैं. क्राइम हो गया, क्राइम के स्फेयर में लिबर्टी, कि आप किसी को मार दो, दैट इज़ नॉट अलाउड. सिविल डिस्प्यूट और इकोनॉमिक स्फेयर, इनमें हमें देखने को मिलेंगे लॉ और साथ में लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शन. लॉ लगाएगा लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शन इन स्फेयर में. So with this we have come to end of this video, and I hope you have liked this video. And if you have liked it or you have any doubt, please write it down because I would love to answer your question. And I want to say this thing, I'm not a perfectionist. मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है, so please let me know in the comment section below. Love you all. Bye.